ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملتان میں مظفر گڑھ روڈ پر پل عاشق آباد کے قریب ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک آٹو رکشے میں موجود LPG سلنڈر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 14 جھلس کر زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق رکشہ ناگ شاہ چوک سے بہاول پور چوک کے جانب جا رہا تھا، اچانک آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ رکشے میں ایک ہی خاندان کے 10 سے 15 افراد سوار تھے، جو مظفر گڑھ کے علاقے چوک کے قریب ملتان آ رہے تھے۔ سلنڈر پھٹنے کے باعث آگ نے پورے رکشے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں اب تک 3 افراد جہاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 14 افراد شدید جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ملکوال کے حدود میں 2 شوٹر CTD کے مقابلے میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے 2 ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ شادی کی تقریب میں خون کی ہولی کھیلنے والے 2 ملزمان CTD مقابلے میں اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ملزمان امداد اللہ اور ثناء اللہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، جبکہ ان کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کچھ عرصے قبل رائل نواب مارکی میں شادی کی تقریب تھی۔ ملزمان نے 2 افراد کو قتل اور 3 افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا۔ امداد اللہ اور ثناء اللہ علاقے بھر میں دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ دونوں شوٹر جنگ میں CTD سے مقابلے میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ ابھی آپ کو بتائیں، ملک بھر کی طرح بہاول نگر کے عوام بھی حکومت کی جانب سے 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مہنگے پیٹرول کے حوالے سے شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شیخ وقاص اقبال۔ جی وقاص، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ طرف سے غریب عوام پر 2 دفعہ پیٹرول کی مہنگائی کی صورت میں بم گرایا گیا ہے، لیکن حکومت نے 1 دفعہ ان کو ریلیف دیا ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے ایک شہری جو یہاں پہ پیٹرول پمپ پر آئے پیٹرول ڈلوانے کے لیے۔ ہم سے ان سے جانتے ہیں کہ حکومت نے 2 دفعہ سے پیٹرول بڑھا کر ریٹ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے بم گرایا ہے، لیکن جو ریلیف دیا ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ اس وقت پوری دنیا حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان میں بھی پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھی ہیں، اس سے ایک عام آدمی کو پہلے تو انہوں نے قیمت اتنی زیادہ بڑھا دی کہ پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا کم کیا ہے۔ یہ جو قیمتیں کم کی ہے یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مطابق ہے۔ اس سے مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم غریب عوام مر گئے ہیں پیٹرول کی قیمتوں سے۔ اس کی جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کو کم کی جائے تاکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کی زندگی آسان ہو سکے۔ مزید ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں رکشے میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، ان کا کیا کہنا ہے؟ اتنی مہنگائی ہو گئی، 5 بچے نے میرے، سواری کو پیسے منگنے ہیں، سواری انہیں کرایہ نہیں دیندی، جنہ تیل سڑ جاندہ ہے۔ آج الٹا 200 روپیہ پلو لا دے کر جائی ہوتے گھرے جانا ہے جی، بچیاں دی روزی لی جانی ہے جی، ان کی میں کی کریے جی، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ مریم نواز ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کرے کوئی تیل دا گھٹ کر دے تاکہ اسی غریب نو جیون دا حق مل جاوے، کیونکہ غریب دا جینا بڑا ناممکن ہو گیا، مشکل ہو گیا ہے جی۔ مرن دل کردا ہے جی، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ بچوں نے گھرے جانے ہیں، چیز لیندے منگتے ہیں پیسے، ابو جیب وچ پیسے نہیں ہیں۔ ہن پیٹرول پوا رہے ہیں، ابو جیب 200 روپیہ کمایا تے 200 کا پیٹرول ابو ملتا نہیں پیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، میرے ساتھ موجود تھے یہاں پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے جو شہری آئے ہوئے تھے اپنی بائک میں، اور یہاں پر جو رکشہ ڈرائیور آئے ہوئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ 200 روپے کا میں قرضائی ہو چکا ہوں پیٹرول ڈلوانے کی شکل میں، لیکن یہاں پر پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ سواری ہمیں اتنا کرایہ نہیں دیتی جتنے پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ ہمارا اعلیٰ حکام سے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گزارش ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو مزید کم کیا جائے تاکہ یہ غریب عوام کی پہنچ میں آ سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شیخ وقاص، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز، بہاول نگر۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی ہدایت پر بیساکھی میلہ تقریبات کے حوالے سے تمام اداروں کی تیاریوں اور رسپانس ٹائم چیک کرنے کے لیے مرکزی گرودوارہ جنمستان میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیس، ریسکیو 1122، پیرا فورس، سول ڈیفنس، ہیلتھ اور دیگر متعلقہ اداروں نے بھرپور حصہ لیا اور پیشہ ورانہ طریقے سے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں محمد اجمل شہزاد کی اس رپورٹ میں۔
ایمرجنسی افیسر محمد اکرم پنوار نے ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے ٹرما ایمرجنسی، عمارتوں کا منہدم ہونا، بم بلاسٹ اور متعدد فرضی مشقوں کے عملی مظاہرے کا جائزہ لیا۔ اسی موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر متعلقہ اداروں کے ذیلی افسران بھی موجود تھے۔ موقع ایکسرسائز کے اہتمام پر ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے تمام اداروں کے درمیان باہمی کوآرڈینیشن جذبہ اور کارکردگی کو سراہا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ کسی بھی ناہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہم وطن عزیز کے دفاع اور تحفظ کے لیے شانہ بشانہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ کیمرہ مین میاں محمد اسلم کے ساتھ میاں محمد اجمل شہزاد، NTN نیوز، ننکانہ صاحب۔ ملکی صورتحال کے پیش نظر اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کی جانب سے شور کوٹ میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساجد حسین بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں منظور الحسن سیال۔ شور کوٹ ملکی صورتحال کے پیش نظر اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ علی اکبر بنڈر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساجد حسین بھی ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں موجود تھے۔ اس موقع پر کسان رہنماؤں، صدر انجمن تاجران یوسف جنگی، عابد حسین بٹی، DSP محمد شہزاد گل، ٹرانسپورٹر انجمن آڑتیاں اور رکشہ ڈرائیور یونین کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ خطے میں جاری عالمی کشیدگی کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب اور DPO صاحب نے آن لائن ایک میٹنگ کنڈکٹ کی تھی، جس میں انہوں نے تمام تحصیلوں میں DSPs اور اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ میٹنگ کی تھی انجمن تاجران کے حوالے سے۔ انجمن تاجران بھی اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ کسان اتحاد کمیونٹی کے لوگ تھے، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹرز، رکشہ یونینز، آڑتیان، انجمن آڑتیان کے ریپریزنٹیٹیو موجود تھے۔ تو ان سب سے ہم نے ملکی صورتحال پر ایک سیر حاصل بحث کی تھی، جس میں ان سب کو ملکی صورتحال کے بارے میں بتایا بھی گیا تھا، اور جو ریسنٹلی پیٹرول میں پرائس ہائیک ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی، جس میں ان تمام زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے انجمن تاجران نے، انجمن آڑتیان نے، کسان اتحاد کمیونٹی نے تحصیل ایڈمنسٹریشن اور ضلعی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ فل تعاون کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ حکومت عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات بروئے کار لا رہی ہے۔ عوامی مفاد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر کا ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کا عزم۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ رپورٹر منظور الحسن سیال، NTN نیوز، شور کوٹ۔ دی ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سمندری کے گاؤں 199 گاو بے میں سالانہ 5واں 2 روزہ فری میڈیکل اینڈ آئی سرجیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر آنے والے مریضوں کو فری چیک اپ، فری ٹیسٹ، فری ادویات اور فری آنکھوں کے آپریشن کی سہولت فراہم کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عثمان قادری سے، جو اس وقت کیمپ کے اندر موجود ہیں۔ جی عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ میں اس وقت سمندری کے گاؤں 199 گابے میں موجود ہوں۔ یہاں پر 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، جس میں مریضوں کو مفت ادویات اور ٹیسٹوں کی سہولت بھی دی گئی ہے، مریضوں کو چیک بھی کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت آرگنائزر کیمپ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کیمپ لگایا گیا ہے تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کتنے مریضوں کو چیک کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کون کون سی جو یہاں پہ سہولیات فراہم کی گئی؟ ہاں جی، بہت شکریہ۔ یہ جی جنرل آئی کیمپ ہے، جس میں آنکھوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے، اور جو دوسرے مریض آتے ہیں جنہیں کوئی معدے کی ہے، کوئی آنکھوں کا علاج کرنا چاہتا ہے، کسی کو کھانسی آ رہی ہے، کوئی کپنگ کے لیے آ رہا ہے جسے حجامہ ہم کہتے ہیں، تو اس طرح کے بہت سارے۔ اگر ٹوٹل پیشنٹ کیا جائے تو 2 دنوں کے اندر تقریباً 1400 کے قریب پیشنٹ کو یہاں پہ مفت سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ جب کوئی میڈیسن نہ ہو تو اسے سبسکرائب کیا جاتا ہے اور سارا وہ دی جاتی ہیں پرسکرپشن اس کو، اور دوسرا اس کو میڈیسن اور ٹیسٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سے ڈاکٹر یہاں پہ کس طرح کے اسپیشلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں سر ہمارے پاس آئی سرجن موجود ہیں، یورولوجسٹ موجود ہیں، ہمارے پاس میدا کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، اور ایک جو جنرل بچوں کے لیے بتاتے ہیں اور خواتین کے لیے، اور دوسرا جو ہوتا ہے جو مسل کے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پٹھوں کی بیماریاں، اس کے علاج کے لیے، اور دوسرے کپنگ کے لیے، ان کے لیے ہر ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف یہاں پہ موجود ہے۔ آج بالکل ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ بڑے اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہیں وہ بلائے گئے ہیں، اور جو مریضوں کا مفت معائنہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن فری دی جا رہی ہے، اور دور دراز سے جو سمندری کے دور دراز علاقہ ہے وہاں سے مریض جو ہیں اپنے چیک اپ کروانے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ جی
चिरियोट इंतजामिया ने हुकूमत विजन को हवा में उड़ा दिया, जबकि शहर में माल मवेशी पालना काबिल एतराज़ और संगीन जुर्म है। शहर में माल मवेशी पालने की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिरियोट से कैसर वेंस से। कैसर वेंस आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शहर चिरियोट से, जबकि यहाँ पे बात करेंगे हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इंतज़ामिया ने वीएन को हवा में उड़ा दिया। जबकि वज़ीर आला का वीएन था कि शहर के अंदर जो है माल मवेशी पालना एक काबिल एतराज़ और संगीन जुर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चिरियोट के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है माल मवेशियों को जो है पाला जा रहा है, और साथ साथ जो है उसके गोबर और गंदगी की वजह से नालियाँ जो हैं और नाले जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे गंदा पानी जो है बदबू छोड़ता है और शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। जबकि इंतज़ामिया ने जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन को हवा में उड़ा दिया और तमाम तर जो है जानवर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो पाले जा रहे हैं और शहरियों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम तर जो है शहर के अंदर जानवरों को दीगर इलाकों के अंदर जो है निकाला जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जबकि शहरियों ने हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील की है और डिप्टी कमिश्नर चिरियोट आयशा रिजवान से कि फौरी तौर पर जो है शहर के अंदर माल मवेशियों को दीगर इलाकों के अंदर निकाला जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, बुरेवाला के नवाही इलाके 142 IB में कायम गवर्नमेंट डिस्पेंसरी शदीद खस्ता हाली का शिकार हो गई है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये डिस्पेंसरी हज़ारों मकीनों के सेहत की बुनियादी सहूलत फराहम करने का वाहिद मरकज़ है, मगर इस वक्त न सिर्फ इमारत बोसीदा हो चुकी है बल्कि अमला भी तैनात नहीं, जिसके बायस अवाम बुनियादी तिब्बी सहूलतों से महरूम दिखाई दे रही है। मज़ीद जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज कुरैशी से। जी शहबाज, आगा कीजिएगा। के नवाही गांव 142 EB में वाक़े गवर्नमेंट डिस्पेंसरी इंतजामी गफलत के बायस तबाह हाली की तस्वीर पेश करने लगी है। ये डिस्पेंसरी इर्द गिर्द के तकरीबन 6 चकूक के रहायशियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करने का वाहिद मरकज है, मगर इमारत की चारदीवारी बिल्डिंग और रहायशी क्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। अहले इलाका के मुताबिक डिस्पेंसरी में डॉक्टर, नर्सिस और दीगर अमला तैनात न होने की वजह से मरीजों को इब्तदाई तिब्बी अमदाद तक मुयस्सर नहीं। इसके बायस मामूली बीमारी की सूरत में भी लोगों को दूर दराज हस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने सेहत की सहूलियात और अमला की अदम दस्तयाबी पर शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर डिस्पेंसरी की इमारत की मुरम्मत, तिब्बी सहूलियात की फराहमी और अमला तैनात किया जाए ताकि मुकामी आबादी को इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलत मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहबाज कुरैशी, NTN न्यूज़ बुरेवाला। अभी आपको बताया जलालपुर पीरवाला में हालिया बारिश और ज़्यादा बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पकी फसलों में गंदम प्याज को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशानी और हुकूमत वक्त से फौरी रिलीफ का तकाजा करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त किसान के साथ मौजूद हैं। जय मलिक नवाज, आगा कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मोजालीपुर सदाद में, जहाँ पर हालिया बारिशों से गंदम और प्याज की फसल बिल्कुल तबाह और बर्बाद होकर रहेगी। मेरे साथ इस टाइम किसान मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं। हमारी फसल तकरीबन तैयार थी और 10-15 दिन में हमने हार्वेस्ट करनी थी प्याज और गंदम वगैरह, लेकिन जो है हालिया जो बारिशें हुई हैं और यालाबारी हुई है, जिसकी वजह से हमारी फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तबाह बर्बाद हो गई है। पिछले साल सैलाब में भी हमारी फसलें ख़त्म हो गई थी। हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा जो है हमें रिलीफ नहीं दिया गया। तो हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से और इस वक्त जो है ना आला हुकाम से कि वो हमें इसमें रिलीफ दे, फ्यूल के अंदर रिलीफ दे हमें, और बिजली के बिलों में रिलीफ दे, और खादों में रिलीफ दे हमें। और जो फ्यूल की इस वक्त प्राइसेस हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम अगली फसल काश्त कर पाएंगे। और जो हमारे रेट्स जो हमें दिए जाते हैं हमारी फसलों के, उसके अंदर भी हुकूमत को जो है ना वो नजरसानी करनी चाहिए। शुक्रिया जी। जी, आपने उनकी बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि पिछले साल तो हमारे सैलाब में फसल पक्की पकाई ज़ाया हो गई, अब ये बारिशों में भी ज़ाया हो गई। लिहाजा हुकूमत वक्त से यही अपील कर रहे हैं, डीजल है, पेट्रोल है, और उसमें हमें ये रिलीफ दिया जाए ताकि हम अगली फसल जो कपास की है वो भी हम बआसानी काश्त कर सकें। जी।
समुंदरी और मामू कांजन में मुसलसल 2 रोज से जारी रहने वाली बारिश और ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं की वजह से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि भारी बिजली के बिल, डीजल, खाद और बीज पर काफ़ी अखराजात आए हैं और सारी जमा पूंजी गंदम की फसल पर खर्च कर दी है। हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट या सब्सिडी ना दी गई तो किसान माली बहरान का शिकार हो जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं समुंदरी से नुमाइंदे NTN न्यूज़ उस्मान कादरी से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल 2 रोज से समुद्री में जारी रहने वाली बारिश, तेज हवाओं और ओलों की वजह से जो गंदम की फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इस वक्त जो बारिश की वजह से गंदम की फसल जो है वो काफ़ी गिर चुकी है और उसकी वजह से जो पैदावार है वो मुतासर होने का खदशा है। दूसरी तरफ जो बारिशों का जो सिलसिला 2 दिन से जारी है उसकी वजह से बहुत सारे नशेबी इलाके जो हैं उसमें पानी खड़ा हो गया है और जो निकासी आब का जो कई मकामात पर जो निकासी है वो नहीं की जा रही, नहीं हो रही, इसकी वजह से मुख्तलिफ जगह पर समुंदरी के मुख्तलिफ इलाकों में और मामू कायन में मुख्तलिफ जगह पर पानी खड़ा हुआ है। जबकि इस हवाले से मेरी किसानों से बात हुई तो उनका कहना था कि एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया है, दूसरी तरफ जो मौसमी सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है। उसकी वजह से जो गंदम की फसल है ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और इसके ऊपर जो अखराजात हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में वो कर चुके हैं, अपनी जमा पूंजी जो है इसके ऊपर लगा चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो गंदम की फसल है वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से उनको उनकी जो है वो माली तौर पर वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। और जो हुकूमत है इस हवाले से वो उन्होंने अगर हुकूमत ने इक़दाम ना किए तो किसान को जो है वो माली मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। तो उन किसानों का कहना है कि इस हवाले से हुकूमत पंजाब जो है और हुकूमत पाकिस्तान जो है किसानों की माली मुआवनत करे और इसके साथ साथ जो किसान को सपोर्ट करने के लिए उसको कोई ना कोई प्रोग्राम बनाए ताकि मुल्क की मईशत में जो है उसमें बेहतरी लाई जा सके। साहिवाल के नवाही गांव में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां मकान की छत गिरने से बाप और बेटी ज़िंदगी की बाजी हार गए। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल समीउल्लाह फारूक ने जाए हादसे का दौरा किया और जाँ भाग होने वाले लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। मज़ीद जानते हैं सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल के नवाही गांव 103 7R में बारिश के दौरान जानवरों के शेड की छत गिरने से बाप और बेटी जाँ बाग हो गए। हड़प्पा के रहायशी अब्दुलरशीद और उसकी बेटी बारिश के दौरान मवेशियों को खुली जगह से शेड के अंदर मुंतकिल कर रहे थे कि अचानक शेड की छत गिर गई। सना नामी लड़की मौके पर जाँ बाग हो गई, जबकि उसका वालिद अब्दुलरशीद जख्मों की ताब न लाते हुए RSC हड़प्पा में जाँ बाग हो गया। कमिश्नर साहिवाल समीउल्लाह फारूक ने जाए हादसा का दौरा किया और इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाग होने वाले लवाहिकीन से मुलाकात की और इजहार अफसोस किया। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक ने अपने एक बयान में कहा कि बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए और खस्ता और कच्चे मकानों में जाने से परहेज करना चाहिए ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। सद्दाम हुसैन, NTN न्यूज़, साहिवाल। फैसलाबाद में मसीही बिरादरी के त्यौहार ईस्टर के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की खुसूसी हिदायत पर शहर भर में पुलिस हाई अलर्ट है ताकि अमन और अमान की फ़ज़ा बरकरार रहे। जानते हैं तफसीलात अरम चौधरी की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ईस्टर के पुरमसरत मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। CPO साहिबजादा बिलाल उमर की जेर निगरानी 2400 से जायद पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। शहर के 339 चर्चिज और 13 बड़े पार्क के 86 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर एहलकार तैनात और दीगर हसास मकामात की निगरानी के लिए CCTV कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ इरम चौधरी, NTN न्यूज़। घोटमिक्की में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मीरपुर माथेलो में सोशल वेलफेयर कमेटी का इजलास चेयरमैन मीर खालिद अहमद खान की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया, जबकि तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी, ताल्लुकात अस्पताल डहरकी के अपग्रेडेशन और नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने पर भी गौर किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे प्रेमचंद राजपूत की इस रिपोर्ट में। घोटकी के सोशल वेलफेयर कमेटी का एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मीरपुर माथेलो के कमेटी रूम में मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्स के MNA और चेयरमैन सोशल वेलफेयर कमेटी मीर खालिद खान लोंड ने। इजलास में चेयरमैन जिला कौंसिल घोटकी बंगल खान मेहर, डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर मोहम्मद किरानी, MD माड़ी एनर्जी फहीम हैदर, DMPPHI हारिफ अब्बासी, DHO डॉक्टर राव आफ्ताब अमन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के अफसरान और मुतल्लिका
मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत। इजलास में जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। उस मौके पर फैसला किया गया कि जिले में कायम सनती इदारे इमामी नवादे के साथ मिलकर तालीम, सेहत और दीगर शोबों में तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इजलास में तालका अस्पताल ढेरकी को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने पर गौर किया गया और जिले के नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए हुकूमत अमली बनाने का भी फैसला किया गया। इस दौरान जिले के मुख्तलिफ शहरों में लगाए गए आरओ प्लांट्स को जल्द से जल्द फाल करने की हिदायत जारी की गई। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन सोशल वेलफेयर कमेटी MNA मीर खालिद मखान ने कहा कि अवामी खिदमत उनकी औलीन तरजीह है और जिले की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सनती इदारों खसूसन माड़ी एनर्जी को मकामी लोगों के फिलाई मनसूबों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए ताकि अवाम को बराह रास्त फायदा मिल सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गौरकी मंजूम किरान ने कहा कि जिले निज़ाम तरक्याती मनसूबों की शफाफ और बर वक्त तकमील को यकीनी बनने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाए और मुतल्लिका महकमों को हिदायत की गई है कि वो अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाए ताकि अवाम तरक्याती स्कीमों से ज्यादा इस फायदा हासिल कर सके। कैमरामैन के साथ NTN न्यूज रिपोर्टर प्रेमचंद और राजपूत मीरपुर। लतीफ़ाबाद के UC 115 के इलाका मकीन मेहर अली कॉलोनी में नाले के हिफाजती दीवार की अदम मौजूदगी और सफाई न होने के बायस इलाका मकीन सख्त अजियत का शिकार है। नाले की सूरत हाल पर मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आकिर खान अपनी इस रिपोर्ट में। ज़ेरे नज़र मनाजिर किसी झील के नहीं बल्कि ये मनाजिर हैं लतीफ़ाबाद UC 116 के इलाके मेहर अली कॉलोनी में कायम नाले के। मज़कूरा नाले की अरसद दराज से सफाई न होने और नाले के साथ हिफाजती दीवार की अदम तामीर के बायस ये नाला अब तक 3 से 4 अफराद की जान ले चुका है। नाले के अंदर कचरे के ढेर के बायस मज़कूरा इलाका बारिशों के मौसम में अदम निकासी के सबब तालाब बनकर इलाका मकीनों के लिए बायस अजियत बन जाता है। इलाका मकीनों ने नाले की अदम तामीर के हवाले से NTN न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ भर रहे हैं, बच्चे हमारे यहाँ डूब रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद पहले 2-3 महीने पहले एक बच्ची डूब के मर गई, उसका भी कोई हल नहीं रहा। मीडिया आई थी, दिखाया, सब कुछ किया मगर कोई हल नहीं निकला। बड़े बड़े मेंबर आए, बड़े बड़े ओहदेदार आए, यहाँ मिले बैठे, अर्जी की मगर कोई काम नहीं हुआ। ये पहले भी एक यहाँ पे बच्चा जो है वो डूब चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये घरों के सामने ही है। तो यहाँ बाउंड्री लग जाए, नाली की सफाई हो जाए तो आसानी से ये पानी निकल जाए बस्ती में से ना। यहाँ भी लोग रहते हैं, कोई जानवर तो नहीं है ना इंसान है, सब ये जो है वो बेचारे। तो ख्याल करें मेहरबानी करके। ये यहाँ पर बच्चे कितनी मरतबा डूब के मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर नाला पहले शुरू हुआ था बनने के लिए, उसके बाद बीच में ही रोक दिया गया। उसका नहीं पता कि क्यों रुका हुआ है। अभी हमारी अपील है कि इस नाले को बनाया जाए। जबकि UC 116 के चेयरमैन शकीब कायम खानी ने नाले की सफाई और तामीरात के हवाले से बताया कि जैसा कि गुज़िश्ता साल भी बारिशों में मेहर अली में जो सानिया हुआ, उस सानिया में हमारे यहाँ 2 अफराद जो हैं वो डूब के जा बहाक हो गए। तो हालिया अभी मानसून की पोजीशन है। मैंने मेयर साहब को दरख्वास्त भी लगाई हुई है गुज़िश्ता 2 साल से। उस दरख्वास्त को मैंने रिपीट भी किया है। वाहिद इलाका है मेहर अली जहाँ से पूरे हैदराबाद से पानी निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर 9 फीट और 8 फीट पानी जमा होता है क्योंकि हमारा एक मेन मसला है मेहर अली का नाला। वो नाला असरनो तामीर होना है। तो ये हम आगाही देना चाहते हैं, बराए मेहरबानी अभी वक्त है, जल्द अज जल्द जैसे भी करके इस आवाम को डूबने से बचाया जाए और मेहर अली का नाला तामीर कराया जाए। बाला अकाम से इलाके मकीनों ने अपील की है कि इस नाले को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़ हैदराबाद। जैकोबाद में कुछ दिन कबल घड़ी सुबायों के रिहायशी लापता होने वाले बच्चे मुजम्मिल अबड़ू की लाश घड़ी सुबायों के करीब गंदे पानी के तालाब से बरामद हुई है। लाश ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मज़ीद जानते हैं गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। जैकोबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां चंद रोज कबल लापता होने वाले बच्चे मुजम्मिल अबड़ू की लाश घड़ी सबायों के करीब पानी के तालाब से मिली। पुलिस और अहल खाना ने लाश की शनाख्त मुजम्मिल अबड़ू के तौर पर कर ली है। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। याद रहे कि बच्चे की गुमशुदगी पर वर्षा की जानब से चंद रोज पहले एहतजाज भी किया गया था, जबकि बच्चे की तलाश के लिए SSP फैजान अली की जानब से 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया था। बाद अज़ां कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर लाश वर्षा के हवाले कर दी गई है। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मेरा टीम के साथ गुल मोहम्मद लाशारी, NTN न्यूज़ जैकोबाद।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सक्खर के घंटा घर चौक पर मुजाहिरीन का अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने गले में रोटियां लटकाकर महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मुगल। सक्खर में अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने गले में रोटियां लटकाकर महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। पेट्रोलियम मसनूआत समेत बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी समेत एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। सिर्फ घरेलू बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हो गई हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने बास मसलूब तबका दो वक्त की रोटी के लिए भी ठोकरें खा रहा है। हुकूमत बार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का इल्ज़ाम, सक्खर महंगाई में इजाफे से आवाम शदीद मुतासिर। मुजाहिरीन हुक्मरान अपनी शाह खर्चियाँ कम करने के बजाय आवाम पर बोझ डाल रहे हैं। 137 रुपये इजाफा और फिर 80 रुपये की कमी को लफाजी करार दे दिया गया। उबैदुल्लाह भुट्टो, आवाम के साथ धोखा बंद किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा, महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आने का इम्कान। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मुगल, NTN न्यूज़ सक्खर। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ज़िला लोअर देर के 4 मुख्तलिफ IT सेंटर में बनोकाबिल प्रोग्राम के तहत 3400 तलबा और तालिबात को जदीद और मुफ्त IT कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है, जहां पेशावर IT और ट्यूटर्स की निगरानी में बाकायदा क्लासेस दी जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मदनी से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलखिदमत फाउंडेशन लोअर दीर के हेडक्वार्टर में। उनके ऑफिस में बमुकाबिल प्रोग्राम के जरिए यहाँ पर नौजवानों को जदीद IT कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। दर्जनों की तादाद में यहाँ पर जदीद कंप्यूटर मौजूद है। स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अलखिदमत फाउंडेशन लोअर दीर के सदर हफीजुल्लाह खाकसार एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि इनके प्रोग्राम का बुनियादी मकसद, बुनियादी थीम क्या है। मदनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया अलखिदमत फाउंडेशन की ऑफिस और अलखिदमत बमुकाबिल ऑफिस अहमद का। अलखिदमत फाउंडेशन पिछले 2-3 साल से ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। फ्री ऑफ कास्ट स्टूडेंट्स को रजिस्टर कराते हैं, फिर उनसे टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट की बुनियाद पर इनके इंटरव्यू, जिसमें उनके इंटरेस्ट का, कि वो किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड में उनको एडमिशन दिया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से जो कोर्सेज है वो पढ़ा जाते हैं। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे कोर्सेज 9 बड़े कोर्सेज है। इस वक्त हम 5 कोर्सेज पढ़ाते हैं मुख्तलिफ। जिला भर में कितने स्टूडेंट्स इस वक्त मेल फीमेल हमारे साथ इस वक्त रजिस्टर्ड स्टूडेंट 14,000 स्टूडेंट ने टेस्ट किया है। 6,000 को हमने इंटरव्यू किया है। इस वक्त जो एंगेज है वो 3400 स्टूडेंट्स हम उनको मुख्तलिफ क्लासेस में हमने एकोमोडेट किया हुआ है। जी नाजरीन, आपने देखा यहाँ पर जदीद सहूलियात से आरास्ता इस लैब में जिला भर में 3400 तलबा और तालिबात को फ्री IT कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट से भी आपको आगाह करते रहेंगे। जी, ज़िला लोअर देर में नए तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल्ला मदनी की इस रिपोर्ट में। जिला लोअर दीर में नए तालीमी साल के आगाज की मुनासिबत से सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में वादी तलाश के कदीमी तालीमी इदारे बुखारी पब्लिक हाई स्कूल में सालाना रंगारंग तकरीबें तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें वालिदैन, तुलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान तुलबा ने हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और हाजिरीन से दाद वसूल की। निसाबी सरगर्मियों में मिली नगमे, टेबलोज और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम शामिल थे। तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को शील्ड्स, ट्रॉफियां और मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक असद खान, प्रिंसिपल इरफानुल्लाह खान और दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि मयारी तालीम के फिरोग के लिए वालिदैन, असातिज़ा और तुलबा को मुश्तरका तौर पर किरदार अदा करना होगा। तालीम के शोबे में बेहतरी इज्तिमाई कोशिशों से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि निजी तालीमी इदारे मयारी तालीम के फिरोग में न किरदार अदा कर रहे हैं, ताहम इस सिलसिले में वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान मुअस्सर राबिताकारी को मजीद मुअस्सर बनाना वक्त की अहम जरूरत है। इस मौके पर बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तुलबा और तालिबात में एजाजी ट्रॉफियां और शील्ड तक़सीम किए गए। अब्दुल्ला मदनी, वादी तलाश, दीर लोअर।
कहरोड़ पक्का में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुबैना करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है, जहां असिस्टेंट डायरेक्टर इस्माइल की ज़ेर सरपरस्ती राशन कार्ड एक्टिवेशन के नाम पर सैनिटरी वर्कर से गैर कानूनी रकम वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुबैना करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है, जहां राशन कार्ड एक्टिवेशन के नाम पर सैनिटरी वर्कर से गैर कानूनी रकम वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक सियाह को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर में फी मुलाजिम से 400 रुपए से 700 रुपए जबरदस्ती वसूल किए जा रहे थे, जबकि इस अमल की मुबैना तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर इस्माइल डेवा की जेर सरपरस्ती कटौतियां की जा रही थी। अहम पेशरफ्त यह है कि रकम कटौती करने की वीडियो NTN न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें मुबैना तौर पर वसूली का अमल वाज़े देखा जा सकता है। मुतासरा वर्कर्स की शिकायत पर सिक्योरिटी ब्रांच और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दफ्तर पर छापा मार कर डिवाइस होल्डर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कैमरा टीम वारिस खान के साथ हसनैन खारिंद, NTN न्यूज, कहरोड़ पक्का। अभी आपको बताएं, मार्च में साहिवाल पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी, 25 क्रिमिनल गैंग्स के 73 अरकान गिरफ्तार, 2 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। 637 मुजरिम इश्तिहारी जबकि 231 अदालती मफरान गिरफ्तार हुए हैं। भारी मिकदार में मंशियात और नाजायज़ असला भी बरामद हुआ है। साहिवाल से मुद्दसर चौहान की रिपोर्ट। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेरे क़यादत माह मार्च के दौरान साहिवाल पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई इत्मीनान बख्श रही। गुज़िश्ता माह 25 क्रिमिनल गैंग के 73 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में छीना गया चोरी शुदा 2 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद सलमान काल के हवाले कर दिया। DPO मोहम्मद उस्मान टीपू के खसूसी अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ भी मुहिम जारी। 134 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 2 मन से जायद चर्स, 4 किलो से ज्यादा अफीम, 1 किलो हीरोइन, 950 लीटर से ज्यादा शराब और 7 चालू भट्टियां बरामद की गई। माह मार्च में साहिवाल पुलिस ने 637 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान, 231 अदालती मफरूरों को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल किया। नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 102 मुकदमा दर्ज करके 85 अदद पिस्टल, राइफल 15 अदद, 2 अदद रिवॉल्वर और 200 से ज्यादा गोलियां बरामद की गई। शहरी हलकों ने साहिवाल पुलिस की शानदार कारदगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा है कि DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेरे क़यादत हर वक्त और मुनज़्ज़म हिकमत अमली के बाइस जिला भर में जराइम में वाज़े कमी आई है और अमनो अमान की फिजा मजीद बेहतर हुई। मुद्दसर चौहान, NTN न्यूज, साहिवाल। कार्रवाई दौरान चेकिंग कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा कार बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ गफूर की इस रिपोर्ट में। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खतरान के अहकामात पर थाना उबाड़ो पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई सामने आई है। चोरी शुदा एक कार जेल बरामद, मालिक के हवाले कर दी गई है। थाना उबाड़ो पुलिस को लिंक रोड रोंती पर स्नैप चेकिंग करता हुआ देखकर 2 नामालूम मुल्जिमान चोरी शुदा एक कार छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस मसरूका कार थाने पर ले आई और कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक इशफाक अहमद वल्द मोहम्मद जिक्रिया मुगल मुस्लिम कॉलोनी उबाड़ो के हवाले कर दी गई है। मज़कूरा कार 16 जनवरी 2026 को नामालूम मुल्जिमान मुस्लिम कॉलोनी उबाड़ो से इशफाक अहमद मुगल की एक GLI कार चोरी कर ले गए थे, जिसकी इतला मालिक ने थाना उबाड़ो पर दी हुई थी। इशफाक अहमद मुगल ने कार वापस मिलने पर SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खतरान और घोटकी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खतरान की जानिब से उबाड़ो पुलिस के लिए शाबाशी का पैगाम भी दिया गया है। कैमरा टीम के साथ मलिक आसिफ गफूर, NTN न्यूज, उबाड़ो। जैकबाबाद की तहसील घड़ी खैरों में स्टूडेंट इत्तेहाद की जानिब से तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए पंचगली चौक पहुँच कर धरने में तब्दील हो गई। मज़ीद जानते हैं गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। की तहसील गढ़ी खेरों में तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों की जानब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली स्टूडेंट इत्तेहाद की क़यादत में निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए पंचगुली चौक पे पहुंची। यहाँ मुजाहिरीन ने धरना दे दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि तेल की कीमतों में हालिया इजाफा अवाम पर जुल्म के मुतादरफ है, जिससे महंगाई में बेपनाह इजाफा हो गया है। उनका कहना था कि अवाम पहले ही महंगाई से तंग आ चुकी है।
है और अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लोग खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हो रहे हैं। मुज़ाहिर ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और जंग का बहाना बनाकर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मंसूरात की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ गुलमोहन लाशरी, NTN न्यूज़, जेकावा। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।